Okay ji. So the next feature or the next aspect as far as identifying the part families is concerned is the identification of manufacturing features or manufacturing requirements. The first one was design that we discussed previously. The next one is manufacturing attributes or the requirements as far as the manufacturing of parts is concerned. So operations and operation sequences. By operations, we mean what type of operation, whether a part requires turning or milling or drilling. These are the operations, and in which sequence that processing or operations are required. So if there are similarities in operations and the parts are similar in their operation sequences, so they can be placed in one family. Then the machine tools. One is machine tool, the other one is cutting tool. By machine tool, we mean the different types of machines, like lathe is a machine tool, milling is a machine tool, drilling is a machine tool. The other term that we normally use is a cutting tool, like single point cutting tool or multi-point cutting tool, or like a milling tool. So these are all cutting tools. So, what type of machine tool? किस किस्म की machine उसको चाहिए? So if there are similarities in the requirements of machines, and obviously different sizes of machines, like a medium size lathe bhi ho sakti hai, एक huge size lathe bhi ho sakti hai. So if दो parts हैं and they require, एक को जो है तो एक medium size lathe चाहिए, एक को huge size, so obviously those parts cannot be placed in one family. So similar kind of machine tool requirements, that is essential. Similar times kind of cutting tools requirements, that is also essential, because हम कहते हैं कि जब parts को हम एक family में रखते हैं तो अगर उनकी ये requirement same हो, अगर similar किस्म के work holding devices चाहिए हो, similar किस्म के cutting tools चाहिए हो, similar किस्म की machine tools चाहिए हो, processing times के अंदर भी similarity हो, तो इससे क्या चीज रिड्यूस होती है? इससे सेटअप टाइम्स रिड्यूस होते हैं. आप जब एक पार्ट प्रोसेस होता है किसी मशीन के ऊपर, उसको आप उतारते हैं, तो दूसरे पार्ट को जब तक आप ऑब्वियसली उतारने और दूसरे पार्ट को इंस्टॉल करने और मशीन को ऑन करने के दौरान जो टाइम होता है, दिस इज नॉर्मली कॉल्ड सेटअप टाइम. सो दैट सेटअप टाइम इज रिड्यूस्ड बिकॉज आपने एक पार्ट उतारा. यू डोंट हैव टू चेंज द कटिंग टूल. You don't have to change the work holding devices, and you don't have to worry about the processing times. तो उसमें क्या हो सकता है कि आप जो क्या कहते हैं कि you may require similar kind. So the setup time is essentially reduced, and because of the reduction in setup times, आप जो है इसको एक फैमिली के अंदर रख सकते हैं. दैट कैन बी द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच पार्ट फैमिली फॉर्मेशन कैन बी कैरिड आउट. ओके जी. आई डोंट नो व्हाई दिस लाइन इज कमिंग इन. Okay, the next one is identifying part families. Again, group technology emphasizes on part families based on similarities in design, attributes, and manufacturing. Therefore, GT contributes to the integration of CAD and CAM. Group technology को अगर आप larger context में देखें तो ये system को integrate कर सकता है. System के अंदर क्या होता है? Manufacturing system के अंदर, manufacturing system के अंदर जो है नॉर्मली हम डिजाइन करते हैं पार्ट को और फिर उसी पार्ट को हम आगे जो है तो जाके मैन्युफैक्चर भी करते हैं. तो अगर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम हो तो इंटीग्रेशन कहाँ पे आ सकती है? जब आपके प्रॉपरली पार्ट्स के रूट्स आइडेंटिफाइड हो, पार्ट्स के लिए सेल्स आइडेंटिफाइड हो, तो डिजाइन के एस्पेक्ट पे ही हम एट्रीब्यूट्स ऑफ डिजाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पार्ट्स जो है वो किसी एक फैमिली के अंदर जा सकते हैं. इसी तरह कैम के एस्पेक्ट से मैन्युफैक्चरिंग के एट्रीब्यूट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम, जो कि एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि अगर सिस्टम फुली इंटीग्रेटेड हो
तो obviously it can function in a much better coordinated manner. So group technology can also help in integration of CAD and CAM aspect. Okay जी, यहाँ पे पार्ट फैमिलीज को फर्दर थोड़ा सा जो है तो एलैबोरेट किया गया है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अपार्ट फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ हैविंग सिमिलैरिटीज, हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स. अब सिमिलर कौन से एट्रीब्यूट्स? जिसमें अंदर डिजाइन एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट आ सकते हैं. अब डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? आइडेंटिफाई ऐसे किया जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 मेथड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अब ये 3 मेथड्स क्या हैं? विजुअल इंस्पेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग and production flow analysis. Visual inspection method one by one जो है तो हम हर method को लेंगे and we will discuss के what are the aspect of visual inspection method. आप you have a set of parts और आप उसमें से देख के ये decide करते हैं कि which parts can be placed in one family just by having a look at the set of parts. अब जब ये एस्पेक्ट आता है तो इसका मतलब है कि whosoever is carrying out visual inspection, he has to be a skilled and experienced worker. अगर experienced worker होगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकेगा कि पार्ट्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है. इसी तरह नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग है. इट इज अ मोर टेक्निकल मेथड जिसके अंदर सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व हैं कि आप क्लासिफाई करते हैं, पहले कोड जनरेट करते हैं फॉर ईच पार्ट और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोड then you classify the parts. And then production flow analysis, ये एक और टेक्निक है कि जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ड है कि जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट होती है उन मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए आप कैसे पार्ट फैमिलीज को एस्टैब्लिश. सो ये 3 ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस हैं कि इन ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस के साथ जो है हम को यूज करके हम कैसे पार्ट फैमिलीज को बना सकते हैं. सो दैट या पार्ट फैमिलीज फॉर्म कर सकते हैं. सो वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग देम. अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो फॉर्मिंग पार्ट फैमिलीज, विजुअल इंस्पेक्शन मेथड. अब विजुअल इंस्पेक्शन क्या है कि यू हैव अ सेट ऑफ पार्ट्स और उसके अंदर अब ये कुछ प्रिज्मेटिक पार्ट्स हैं, जैसे ये प्रिज्मेटिक है, ये आपको प्रिज्मेटिक लग. इसी तरह कुछ जो है वो सर्कुलर पार्ट्स हैं या रोटेटिंग पार्ट्स इसको हम कहते हैं, जिनको आप लेथ मशीन या टर्निंग मशीन्स के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं ज्यादातर. तो आप देखें तो इसमें अगर हमें प्रिज्मेटिक और रोटेशनल पार्ट्स को एक दूसरे से अलहदा करना हो तो दैट्स हाउ वी कैरी आउट विजुअल इंस्पेक्शन या विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स इनटू डिफरेंट फैमिलीज. फॉर्मिंग पार्ट फैमिलीज विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर फिर इश्यूज क्या हैं? इनकरेक्ट रिजल्ट्स. डिपेंड करता है, बाज दफा जो है तो गलती भी हो सकती है. ह्यूमन एरर कैन क्रीप इन ऑब्वियसली. कभी बिकॉज एक वर्कर ने ही करना है तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट सर्टेन एरर कैन बी. डिफरेंट जजमेंट बाय डिफरेंट पीपल. मुख्तलिफ वर्कर्स जो हैं वो उसको मुख्तलिफ अंदाज में देख सकते हैं. दे कैन जज इट डिफरेंटली बिकॉज कोई एक जो है किसी एक पार्ट को एक फैमिली में रख सकता है तो दूसरा उसको डिसाइड करता है नहीं, इट मे नॉट बी इन दिस फैमिली, इट कैन बी सम इन अनदर फैमिली. सो जजमेंट ऑल्सो inexpensive method है obviously because you are not using any software, you are not using any technical help. आप सिर्फ जो है तो टेक्निकल हेल्प इन केस ऑफ कंप्यूटेशन नहीं कर रहे, कोई आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा हुआ, कोई और इंस्पेक्शन मेथड आपके पास नहीं है, कोई और जजमेंट का मेथड, सिर्फ जो है तो आप एक वर्कर आपने हायर किया है या एक स्किल्ड वर्कर है और वो ही सिर्फ बाय इंस्पेक्टिंग जो है वो आपको बता रहा है कि जी दीज आर द फैमिलीज दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड. लीस्ट सोफिस्टिकेटेड बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन एनालिटिकल मेथड. ये सिर्फ एक बंदे की जजमेंट के ऊपर है, तो सोफिस्टिकेशन का लेवल जो है दैट इज ऑब्वियसली less. Good for small companies having smaller number of parts. When the number of parts are smaller, so even families can be formed on the basis of judgment. But even for a skilled worker, a highly skilled worker, when the number of parts are larger, when he has to form families
in a larger sample of parts, तो फिर then it becomes a laborious task, difficult. तो फिर वहाँ पे आपको software based methods या analytical based methods जो है तो you require. Okay. The next thing of part families formation is the classification and coding. अब classification and coding को अगर हम देखते हैं तो two aspects हैं. First one is coding and the next one is classification. In coding, we generate a code for each part. And in classification, then we classify parts on the basis of this code. The process of assigning symbols to the parts where the symbols represents design attributes of parts, manufacturing features of parts, or both. Then classification, the process of categorization of a set of parts into part families. The first thing is that on the basis of certain symbols, certain attributes, we develop a code. कैसे करते हैं वो अभी हम next slide पे अब discuss करते हैं. We develop a code. And once the code for each part is established, then we classify those parts on the basis of this code. How do we do that? Let's see. यहाँ पे एक example है. इस example के अंदर अगर आप देखें तो ये एक OPEDS part coding system है. उसके अंदर अब for example ये एक part given है. इसको given the rotational part design below, determine the form code in the OPED parts classification and coding system. ये अब एक proper एक system है, software based system है जिसके अंदर हम codes generate कर सकते हैं for each part. अब इसके अंदर अगर आप देखें तो solution to length to diameter ratio, if that is 1.5 या किसी for example यहाँ range भी दी जा सकती है. So if it is equal to 1.5 तो हम जो एक digit 1 जो है उस कोड का उसको हम 1 assign कर देते हैं, value 1. If the length to diameter ratio of a part is 1.5, so उसको हम digit 1 assign कर देते हैं, digit 1 की value 1 assign कर देते हैं. If the external shape, both ends are stepped with screw threads on one, both ends are stepped, ये देखिए यहाँ भी एक step है और यहाँ भी एक step है और एक side के ऊपर screw threads बने हैं. So if that is the kind of shape, तो digit 2 को हम ये value, digital value 5 दे देते हैं. Internal shape, part contains a through hole, अगर उसके through एक होल ड्रिल हुआ है जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. अगर थ्रू होल है तो डिजिट 3 वुड बी 1, अदरवाइज फिर उसको कोई और वैल्यू दी जा सकती है. प्लेन सरफेस मशीनिंग चाहिए, अगर प्लेन सरफेस मशीनिंग की रिक्वायरमेंट नन है तो हम इस केस में नन है तो हम उसको 0 असाइन करते हैं. ऑक्सिलरी होल्स, गियर्स, टीथ एक्सेट्रा कोई नहीं है, नन है तो हम उसको 0. अब जो इस सीक्वेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये इसका ऑपरेट सिस्टम का कोड बनता है, विच इज 15100. 15100. अब अगर आप ये देखें कि ये डिजिट 1 है, डिजिट 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ टू डायमीटर रेशियो को. ये डिजिट 2 है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टेप्ड बोथ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिजिट 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल शेप थ्रू होल को रिप्रेजेंट कर रहा है. डिजिट 4 क्या है? प्लेन सरफेस मशीन रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है. डिजिट 5 क्या है? ऑक्सिलरी होल्स या गियर टीथ जो है वो चाहिए या नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है. अब इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो एक कोड, अब जिन पार्ट्स का इसी किस्म का एक कोड बनेगा, जिन पार्ट्स का इसी किस्म का एक कोड बनेगा, सिमिलर कोड होगा, उन पार्ट्स को हम एक फैमिली के अंदर जो है वो रख सकते हैं. अदरवाइज फिर अगर कोड्स मैच नहीं करते तो जिन पार्ट्स के ऑब्वियसली जिन पार्ट्स के कोड्स मैच करते हैं, ऑल दोस पार्ट्स
who are having similar codes, they can be like placed in a single family. So I would like to stop here because that would sort of complete a portion of this particular lecture. और फिर inshallah in our next sitting we will continue from here onwards production flow analysis की तरफ. अभी हमने सिर्फ दो methods को देखा because production flow analysis is the method that we would be discussing in much more detail because there are a number of techniques which are based on production flow analysis. तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको डिस्कस करना चाहें, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो वो मुझे बता दें. हाँ जी, एनीबॉडी अब क्वेश्चंस बताइए प्लीज. जी, एनी क्वेश्चंस? Ji, somebody was asking me a question in the previous session. I would like him to ask that question so that I can address it now. Ji, nobody is asking me any question? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, अक्सर एक क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट में कौन सा बेस्ट है. सर, इनमें मतलब जो चीज़ हम बना रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी को मद्देनजर रख के सर हम इसका बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं या कुछ और भी फैक्टर्स हैं सर प्रोसेस और प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट की बात कर रहे हैं. जी सर. दिस इज व्हाट. देखें, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन तो बेसिकली मैंने आपको शुरू में ही बताया. चले अगर मैं उस पे उस स्क्रीन, लेट मी गो बैक टू द दिस इज प्रोडक्ट. सर, मेरा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन सर ये है कि जी 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 प्लीज प्लीज गो अहेड. जी सर, मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है कि अक्सर सर वाइवा में भी पूछा जाता है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट में बेस्ट कौन सा है, यानी किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो हम अक्सर सर कहते हैं कि हम अगर बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं या हमें लीड टाइम को मद्देनजर रख के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या कुछ और भी फैक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व करके जिसमें हम एक जनरल डिसीजन ले सकते हैं कि प्रोडक्ट बेहतर है ओवरऑल या प्रोडक्ट लेआउट बेहतर है. देखिए ओवरऑल सर नहीं, देखें आप ये नहीं कह सकते कि ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन कि किस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं और किस किस्म की मार्केट को आपने टारगेट किया हुआ है. लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड लेआउट, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लाइन बेस्ड लेआउट. ठीक है, अब यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं, बिकॉज लाइन बेस्ड लेआउट के अंदर हमारा मकसद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, हमने बहुत ज्यादा मार्केट शेयर, हमारा बहुत ज्यादा है, हमने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को टारगेट करना होता है या उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, तो फिर क्या है, फिर हमें बहुत हायर फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनानी है और एक ही प्रोडक्ट भेजनी है मार्केट में और उसकी बहुत डिमांड है, बहुत स्टेबल डिमांड है, साल साल उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर हम प्रोडक्ट बेस्ड लेआउट को प्रेफर करेंगे. बिकॉज हम यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मशीन्स लगाएंगे एक लाइन में, ट्रेवलिंग कोई नहीं होगा, एक पीस ही फ्लो कर रहा होगा, वेटिंग टाइम नहीं बढ़ेगा. ठीक है, दूसरे साइड पे अगर हम आ जाते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो कंपैरेटिवली क्या कहते हैं कि छोटी है, कंपैरेटिवली छोटी है, लेकिन कस्टमर जो है वो डाइवर्स प्रोडक्ट्स मांगता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डाइवर्सिटी. जी सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. अच्छा, मैं बता रहा था कि
हाँ, मैं बता रहा था कि जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी मींस के कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी कर रही हो, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स वेरी कर रही हो, तो फिर आप एक प्रोडक्ट फोकस्ड सिस्टम के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जो है तो इस किस्म के सिस्टम को यूज कर सकते हैं कि जहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो। रीजन ये है कि इन दोनों का डेरिवेशन है सेलुलर लेआउट। यही पॉइंट में मेकअप कर रहा था, दोनों से डिराइव हुआ है कि यहां पे आपको फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन भी मिलता है और एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। आप फ्लेक्सिबिलिटी भी लेट गो नहीं करते, लेकिन आप बैच प्रोडक्शन की टाइप या जो प्रोसेस बेस्ड लेआउट के फंक्शनल बेस्ड लेआउट का जो स्लोनेस है उसको भी आप जो है वो कैटर फॉर करते हैं, और उसकी जो जो एस्पेक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आप लेट गो नहीं करते। फिर फ्लो लाइन के अंदर जो फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ एस्पेक्ट आपने यहाँ पे उसका भी जो है तो मेंटेन कर लिया, तो आप क्विक टाइम के अंदर विद फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके करते हुए अपनी प्रोडक्शन के अंदर यू कैन रिस्पॉन्ड टू योर कस्टमर। सो ये हम नहीं कह सकते कि कौन सा बेहतर है, दैट डिपेंड्स अपॉन इवन सेलुलर लेआउट में नॉट वर्क, कि अगर आपके पास आपने ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है कि जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो और एक ही किस्म की प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हो, तो इवन दिस लेआउट में नॉट वर्क। फिर आपको उसी प्रोडक्ट फोकस्ड लेआउट के ऊपर या प्रोडक्ट वो फ्लो लाइन प्रोडक्शन के ऊपर ही वापस जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर।